if we understand John Locke, we might be able to understand a lot of feminism, because in empiricism there are roots to most of modern day ideologies. So the first feminist that we have, obviously we बहस तो आप हर चीज पे कर सकते हैं, but she is the first, Mary. She was highly inspired by Locke and his writings. You can say her thoughts, her writings are empiricism का application. तो अब Muznabi Agi Irtaza is also here, so let's start now. John Locke, 1632, 1632 से 1704. 1632 का मतलब क्या हुआ? फिर से वही दौर है. He would be teenager and लगभग लगभग Descartes would leave. Uh, his youth would coincide with Spinoza की age, and also with his life would coincide also with the other person, Leibniz. तो ये सारा एक ही चीज़ एक ही वक्त में हो रहा था. इससे आपको एक और चीज़ भी, हिस्टोरिकल लेसन भी पता चल रहा है. वट एवर वी नो ऑफ यूरोप नाउ, जो हम यूरोप को जानते हैं, जिस यूरोप को हम जानते हैं, वेस्टर्न यूरोप को, जिस नॉर्थ अमेरिका को हम जानते हैं, ये उसके बनने की कुछ साल पहले की बात है. So you see that before making of a civilization or a nation, it is all chaos. It is haphazard thoughts, conflicting thoughts, जो पेडल हो रहे होते हैं माशरे में, और and their synthesis that creates a better thought future के लिए. A thought, a particular thought gains more currency than any other thought. So that's also one of the reasons why I say that the Muslim nation is gonna rise after this. One of the reasons is this particular thing, that there is chaos in Muslim world, and we have seen that chaos for last few decades, at least. I mean, it has been there for like almost a century now, for last few decades. और उसमें there have been conflicted thoughts जो rudimentary थे पहले, जैसे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स थे, रिविजनिस्ट मूवमेंट्स, मॉडर्निस्ट मूवमेंट्स. Everything, every Muslim has become a nation in himself. If you talk to a Muslim, he will, okay, okay, I don't believe in this particular thing. I accept Hadith, but I do not think that Hadith is a separate source of knowledge. There would be another, no, 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 I don't believe in Hadith at all. I just believe in Quran. There would be another, no, I believe in Riwayah. I don't even listen to Quran or Hadith. I learn my religion from my parents. So everyone is different. I don't accept communism. There is another person. No, no, no. Capitalism is bad. So every person is like that. And within that, we have matured in our differences now. What does that mean? That means that we are talking about our differences, और हम उन differences को अब समझने की कोशिश कर रहे हैं. हम अपने thought को strengthen करने की कोशिश कर रहे हैं. So the thought I carry was in its rudimentary stages 10-15 years. Now it is maturing, it is presenting its stronger arguments. So the opposition has to make its argument stronger. So they are also doing, which makes me to make my argument stronger. And that's what is happening in Europe right now. यूरोप में यही हो रहा है. मतलब राइट ना, मतलब जो एरा हम पढ़ रहे हैं 1632 टू 1700, यही हो रहा है यूरोप में, जो मुस्लिम वर्ल्ड में इस वक्त हो रहा है. कि आर वी गोइंग टू गो द गजाली वे, और आर वी गोइंग टू गो द इब्न रुशद वे? Are we going to go the Abdul Wahab way, or are we going to go the Masnavi way? So these texts are getting revived हमारे यहाँ. तो हमारे यहाँ ये बहस वापस नए से जिंदा हो रही है और मैच्योर हो रही है. तो these are good things. ये वो जो पहला पत्ता फूटता है ना नए पेड़ से, ये वो है पहला पत्ता निकलने का. जॉन लॉक सोमरसेट में पैदा हुए थे 1632 में, और ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे. मेडिसिन प्रैक्टिस करते थे, लेकिन ज़्यादा कंसर्न ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में थे. इनका पॉलिटिकल थॉट बहुत रेलेवेंट है. हम इनका फ़लसफ़ा पढ़ रहे हैं तो, लेकिन फ़लसफ़ा वही है, ये बेसिस है.
हर एक थॉट की बेसिस फ़लसफ़ा है। तो हम जब ये फ़लसफ़ा समझेंगे फिर हम इनका एप्लीकेशन देखेंगे और वहाँ पे आएगा इनका पॉलिटिकल थॉट। बहुत इनकी पॉलिटिकल करियर इनका ऐसा नहीं था मीडियोकर। हर जगह इनकी अम, चलती थी, बनती भी थी। दोस्त इनके वक़्त के जितनी भी अज़ीम शख्सियतें हैं वो सब इनकी जान-पहचान के हैं। सो ही इज़ दैट एलीट का भी एलीट। बहुत कम लिखा है इन्होंने पहले-पहले। इनका सबसे मशहूर काम ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। Once again, I would request if you do not read the entire book, that's okay. But take the book, read a few pages. But few matlab 5-6 pages is enough. And anywhere you don't need to read the first one. You can just open randomly page number 132 and read 6-10 pages. That's all. तो because that tells you the author थोड़ा सा उसके साथ लगाव भी पैदा होता है एंड टू अंडरस्टैंड इन योर फिलोसफी में इन पर्टिकुलर एंड सोशल साइंसेस में इफ यू टेक द ऑथर एज एन एनिमी यू आर नॉट गोना लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिम और फिलोसफी में ये ज़्यादा होता है बिकॉज दीज आर these are natural sciences. Yeah, sorry. These are social sciences, and you are also a social animal. So you have yourself some ideology. So you would have opinions about everything they are talking about. तो 1679 के आसपास इन्होंने ये किताब मुकम्मल की थी, लेकिन ये पब्लिश उसके 10 साल बाद हुई। 1690 में ये पब्लिश हुई। 1704 में ये दुनिया से रुखसत हो गया। 70 की उम्र में यू कैन सी द एम्पिरिसिस्ट लिव्ड लॉन्गर। हमारे जो रैशनलिस्ट थे दे कुड नॉट, दे लाइक 50s में देखते थे। लॉक ने एपिस्टेमोलॉजी के सवालों को अपने उरूज पे पहुंचाया। सो ही वाज मेनली कंसर्न्ड विद एपिस्टेमोलॉजी। ही वाज मोर कंसर्न्ड विद नोइंग देन व्हाट कैन बी नोन। द थिंग्स दैट आर नोन उनसे ज़्यादा इनका एम्फेसिस था नोइंग इटसेल्फ इस पे। और इसमें he did not entertain any ambitious project but called himself in his own words an under laborer in clearing the ground a little। मैं थोड़ी सफाई कर रहा हूँ और ये सफाई का क्यों मैं कर रहा हूँ बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रबिश एंड ही डज इट अ लार्ज एक्सटेंट। ये हर जगह ऐसे ही हुआ है। ये इनएविटेबिलिटी ऑफ थॉट है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चॉइस है। ये ऐसे ही होना है। ये इसका नेसेसरी कंक्लूजन है कि अ पर्सन हैज़ टू राइज नाउ। हुड जो हमारे कन्फ्लिक्टिंग सोहेल इज लेफ्ट लीनिंग, इर्तजा इज राइट लीनिंग, जाजिब इज राइट नॉट राइट लीनिंग, ही इज लाइक फॉलन टू द राइट। तो but we are still together here, and someone has to clean this mess for us so that he shows us the bigger picture where all of us fit in. तो लॉग कह रहे हैं कि मैं वो सफाई करने वाला हूँ एंड ही पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ एज अ हम्बल सर्वेंट इन डूइंग दैट। इसके अलावा ही वाज कंसर्न्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ मेंटल कंस्ट्रक्ट्स, द फर्नीचर ऑफ द माइंड। उसको ये देखना चाहते थे क्योंकि उस जमाने में उधम मचा के रखा था हाँ, रैशनलिस्ट्स ने जो सिर्फ माइंड माइंड कर रहे थे। तो ही आल्सो वांटेड टू डू दैट। तो इस वजह से ही गेव अस साइकोलॉजी एज एन एम्पिरिकल साइंस और एक हिस्टोरिकल मेथड फिलॉसफी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। दोनों कंट्रीब्यूशन एवरलास्टिंग है अभी भी। दे आर लाइक मेन स्ट्रीम फिलॉसफी। और इससे इन्होंने बेकन के एम्पिरिसिज्म को और फर्दर कर दिया और वही पोस्ट बेकोनियन थॉट इस वक्त का मतलब गलबा इसी का है वर्ल्ड वाइड, इसी थॉट का। तो लॉक में ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम अब एक जगह प्रॉपरली एक फ़लसफ़े के रूप में पेश हो रही हैं। इनके सामने मसला क्या है? देखिए, पहले तो लॉक स्केप्टिक नहीं है। इल्म पे इनको यकीन था। ये इल्म की इम्पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते थे। बिलीव्ड इन नॉलेज। इनके खुद के वर्ड्स में ही सेज विद मी टू नो एंड टू बी सर्टन इज द सेम थिंग। तो नॉलेज क्या है इनके लिए? सर्टन है। वट एवर इज डाउटफुल कैन नॉट बी नॉलेज। सो वट आई नो दैट आई एम सर्टन ऑफ
and what comes short of certainty I think cannot be called knowledge. End quote. लॉक यकीन रखते थे कि ये जो बाहर की दुनिया है ये एग्जिस्ट करती है, तो ये एक रियलिस्ट थे। ये टेबल हाउसेस माउंटेन्स ये हैं, ये हमारे माइंड का कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड है। और कोई भी इल्म उसका सही होने का अब डेफिनेशन भी आपको मिल गया। क्या? एनी नॉलेज मस्ट बी रियल फॉर इट मस्ट रेफर टू एंड होल्ड गुड फॉर द एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स जो बाहर है। बाहर माउंटेन है, आपका इल्म कह रहा है माउंटेन है, दैट मीन्स इट इज ट्रू नॉलेज। लॉक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देख ही रहे हैं। डेकार्ट गए हैं, स्पिनोजा गए हैं, और कौन से गए हैं, लाइबनीज गए हैं, न्यूटन भी इसी एरा के है। हर जगह मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स हो रहा है, हर जगह मैथमेटिक्स हो रहा है, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड डेवलप हो रही है। और हर एक इमेजिनेशन को कैप्चर कर रखा था मैथमेटिक्स ने। हमारे दौर में भी जैसे साइकोलॉजी इज कैप्चरिंग द इमेजिनेशन ऑफ करंट यूथ। हर चीज को साइकोलॉजिकल एंगल से देखा जाता है अभी। वैसे ही मैथमेटिक्स इस दौर में वही काम कर रहा था। और लॉक को इससे दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैथमेटिक्स वही इल्म दे रहा था जिसको ये इल्म कहते हैं सर्टन, जिसमें कोई मसला नहीं था, कोई एम्बिगस नेचर नहीं था उस इल्म का। लेकिन टोटल ऑपोजिट टू व्हाट वी माइट थिंक और मेनी आउट देयर माइट थिंक, ये भी यकीन रखते थे रिलीजन प्रिंसिपल्स और मोरालिटी पे। इनफैक्ट he was a bigger believer in the importance of morals and religious ideas, और ये क्लियर है इनकी राइटिंग्स से। I'll quote him. He says, our business here is not to know all things but those which concern our conduct. बाकी इल्म का क्या लेना देना, इस ये सबसे इम्पोर्टेंट इल्म यही है, और फलसफे का मकसद भी यही है, हर इल्म का मकसद यही है एट द एंड ऑफ द डे, हाउ इट डील्स, हाउ टू एनहांस आवर कैरेक्टर, how to regulate our conduct. I quote him from other place. He says, morality is the proper business and science of mankind in general. Elsewhere, he says, morality and divinity are those parts of knowledge that men are most concerned to be clear in. सबसे important इल्म यही है। ठीक, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है, इस दुनिया में मैथमेटिकल रीजनिंग अप्लाई हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है ही नहीं, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, और मैथ्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है। तो मैथ्स एज ए वैलिड नॉलेज का सोर्स इज वेरी लिमिटेड। लॉक का भी यही मानना था। सो लॉक वांटेड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉलेज जो हमको खुदा और मॉरल आइडियाज की भी सर्टेनिटी देती। तो लॉक का प्रॉब्लम था कि वो डिटरमिन करे द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। वो लिखते हैं, एंड आई कोट, if I have done anything new, it has been to describe to others, more particularly than had been done before, when what is they do when they perform that action which they call knowing। कि मेरा मकसद क्या है, मैंने कुछ नया काम नहीं किया है। अगर मैंने कोई नया काम किया है तो वो ये है, मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है उस चीज को जो वो करते हैं जब वो कहते हैं कि वी नो। What does it mean to know? This is what I have described. यहाँ पे we come across the first idea, which is the idea itself, the meaning of ideas. यहाँ से इनका शुरू हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे ही विल स्टार्ट रेफ्यूटिंग द कंसेप्ट ऑफ इनेट आइडियाज। पहले डिस्ट्रॉय करेंगे पिछली बिल्डिंग को, फिर अपनी बिल्डिंग खड़ी करेंगे। इनेट आइडियाज, यू नो, रैशनलिज्म। तो लेट्स सी, लॉक पहले कोशिश करेंगे to determine the nature, function, origin and limits of knowledge। वो डिफाइन करते हैं इसको एज द परसेप्शन ऑफ द कनेक्शन और रिपग्नेंस ऑफ आइडियाज। आइडियाज में आपस में कनेक्शन क्या है, या हाउ दे आर नॉट कनेक्टेड। तो इस वजह से अगर फलसफा यहीं से शुरू होता है तो द टर्म आइडिया
ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इनका फ़लसफ़ा समझने के लिए, और इनके बाद जो सक्सेसर्स आएँगे बर्कले, ह्यूम, उनका फ़लसफ़ा समझने के लिए। देखिए 2 मतलब हो सकते हैं आइडिया के। इट मे मीन आपकी कॉन्शसनेस की स्टेट क्या है उस वक़्त। दैट इज़ right now my conscious state is that there is 22-degree room temperature, there is light, there is a phone, there is a laptop, there is a book, there's a water bottle. So this is the state my consciousness is in. So the mode of individual consciousness, that's what an idea is. So the idea of fire is that your consciousness is in the mode of fire right now. As such, it becomes a subject to modification without any reference to the outside world. So what is phone जो मेरे सामने है, it is actually a modification of a mind. ये एक तरीका है आइडिया को समझने का। और कौन सा तरीका है? An idea में mean a representation of something other than itself. कि आइडिया इज नॉट अ मेंटल कंस्ट्रक्ट, बाहर जो चीज़ है ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है आपके अंदर। बाहर फोन है, उस फोन की रिप्रेजेंटेशन आपके अंदर। अब लॉक क्या, व्हाट डिड ही मीन बाय आइडिया? लाइक विद अदर philosophers, नॉट क्लियर। ही डज नॉट मेक एनी सच क्लियर डिस्टिंक्शन। वो बोथ सेंसेस में इसको यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट वेयर यू रीड है। जब वो कहते हैं कि वी हैव एन आइडिया और थॉट ऑफ ए टेबल, तो वो कहते हैं कि ऑर्डिनरीली वी मीन दैट वी आर कॉन्शियस ऑफ समथिंग इज इन फ्रंट ऑफ अस। अगर हम फर्दर एनालाइज करें इस चीज़ को, तब हमको ये भी पता चलता है कि आइडिया ऑफ, फॉर एग्जांपल, यही टेबल, what does it consist of? Idea of table consists of certain images of the table. It consists of certain sensations, a feeling of something which is independent of mind. तो हर एक आइडिया इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियसनेस विच पॉइंट्स आउट एंड रिप्रेजेंट्स समथिंग इन द एक्स्ट्रा मेंटल वर्ल्ड, आउटसाइड रियल वर्ल्ड में। अगेन, ये जो आइडिया है एज एन इवेंट इन योर कॉन्शियसनेस, इसको भी हम दो तरीके से समझ सकते हैं। हम इसको एनालाइज कर सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसी की कॉन्शियसनेस में इन टर्म्स ऑफ सेंसेशन, इमेजेस एंड फीलिंग, जैसे हमने अभी किया, देन इट वुड बी अ प्योरली साइकोलॉजिकल स्टडी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, वी मे जस्ट ट्राई टू डिस्कवर द फंडामेंटल, टाइमलेस एंड लॉजिकल कंटेंट विच इज इन्वॉल्व इन ऑल दिस प्रोसेस। और ये क्या होगा, वी विल फाइंड द कैटेगरीज ऑफ नॉलेज देन। ये दो तरीके से कर सकते हैं हम। लॉग क्या करते हैं? अगेन नॉट क्लियर। Locke uses the term idea in all these senses, depending upon the context. और इस वजह से इनकी भी फ़लसफ़े में बहुत कन्फ्यूजन है। इनका भी फ़लसफ़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए एनफ है। इसके बावजूद देयर इज़ लिटिल डाउट that Locke was a realist. He believed in the extramental world to which our ideas refer. तो इनके लिए आइडिया क्या है? इट इज एट वंस द एप्रीहेंशन ऑफ ए कंटेंट एंड द कंटेंट एप्रीहेंडेड। इट इज बोथ ए साइकिकल एग्जिस्टेंस एंड ए लॉजिकल मीनिंग। ये कभी इग्नोर नहीं करते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ आइडिया का, बिकॉज इट रिप्रेजेंट समथिंग द आइडिया। ही नेवर लीव्स आइडियाज टू बी जस्ट मेंटल कंस्ट्रक्ट्स, नो। इसके बाद ये क्या करते हैं, ये इनेट आइडियाज को क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। लेकिन इसमें भी गिव क्रेडिट टू लॉक। ही इज नॉट क्रिटिसाइजिंग ए पर्टिकुलर ऑथर। ही डज नॉट हेट डेकार्ट या सुपिनोजा। इट्स नॉट लाइक दैट। ही इज नॉट रिफ्यूटिंग एनी पर्टिकुलर ऑथर पर से। इसमें कोई शक नहीं है कि इट सीम्स टू बी अ होलसेल क्रिटिसिज्म ऑफ डेकार्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा मशहूर और इस्तेमाल इनेट आइडियाज़ को किया किसने? डेकार्ट ने किया। But he used them for a natural bias or predisposition to their formation, like an inherent tendency to certain diseases. देखिए, लॉक एडमिट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल फैकल्टीज, बट नॉट इनेट आइडियाज। याद करें लाइबनीज ने क्या किया था। लाइबनीज ने क्या कहा था कि मान लिया सब कुछ एक्सटर्नल है,
एम्पिरिकल है, बट द कैपेबिलिटी इज स्टिल इंटरनल। When he was criticizing Locke, now see what Locke was actually saying. Locke क्या कहते हैं कि नेचुरल फैकल्टीज हो सकती हैं बस नेचुरल आइडियाज नहीं हो सकते। दैट मीन्स द कैपेसिटी टू नो डज एग्जिस्ट innately, बट द कंटेंट ऑफ दैट व्हाट वी नो इज ऑलवेज एक्सटर्नल। इसको और समझते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि his refutation of doctrine of innate ideas, it was more, it wasn't actually refutation of the ideas, it was more to explain his own position, जिसमें वो पोजीशन को क्रिटिसाइज करना नेसेसरी बन गया। क्या था इनका मतलब innate ideas का? लॉक का अंडरस्टैंडिंग ऑफ innate ideas is ideas which the mind simply finds in itself, and you can understand it by its opposite। कौन से आइडियाज? विच इट रिसीव्स फ्रॉम आउटसाइड और दोज विच इट क्रिएट्स विद इन इटसेल्फ। ये दोनों आइडियाज कुछ और चीज है। ये वाले जो आइडियाज है ना, विच द माइंड फाइंड्स इन इटसेल्फ, दीज आर सपोज टू हैव अ मिस्टीरियस ओरिजिन। ये कहाँ से आए हमारे अंदर? ये वो ताज्जुब का जरिया बनते हैं। इनका कुछ हमेशा एक्सप्लेन, इसीलिए हमेशा रिलीजियस माइंडेड पीपल वुड गो फॉर इट। रैशनलिज्म का ये वाला एलिमेंट दे वुड ऑलवेज एक्सेप्ट इट कि हमारे अंदर कुछ है जो अल्लाह ताला ने डाल रखा है। एवरी रिलीजियस पर्सन हर जगह आपको ये बोलेगा। तो इनका ये इनेट आइडियाज का ये खुदा ने हमारे अंदर डाले हैं, और इस वजह से देयर इज दैट सर्टेनिटी, दैट मिस्टीरियस कैरेक्टर, दैट अथॉरिटी जो और किसी चीज में नहीं हो सकती है, सिर्फ इन चीजों में। तो ये चीजें, दिस लीड्स टू एट एक्सट्रानस सपोर्ट, और वो सपोर्ट इनकॉम्प्रहेंसिबल है कि ये आए कहाँ से हमारे अंदर, ये इनेट आइडिया किसने डाले। ये उसको मिस्ट्री में डाल देता है, एक पर्दे के पीछे रख देता है, एक डिविनिटी उसकी एस्टेब्लिश कर देता है। इसके अलावा जब फिलोसफर उसको डिस्कस करेगा तो वो डिविनिटी से तो हर एक चीज को एक्सप्लेन करेगा नहीं। द डॉक्ट्रिन ऑफ इनेट आइडियाज दे टेंड टू अपील टू यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी एक ऐसा टेस्ट है जिसको डाउट नहीं किया जा सकता, ये सबके अंदर है। रैशनलिस्ट्स वुड आर्ग्यू कि ये जो इनेट आइडियाज ये सबके अंदर है। कैसे आ गए सबके अंदर? एक्सपीरियंस तो सबका सेम है नहीं। फेयर एनफ। देखते हैं लॉग क्या करेंगे इन आर्ग्यूमेंट्स का। सिमिलरली ये जो इनेट आइडियाज का आर्ग्यूमेंट है, इट आल्सो टेंड्स टू मेक एन अपील टू अथॉरिटी। खुदा ने डाले हैं हमारे अंदर, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अपील टू रीजन। लॉक का मानना था ये सब चीजें प्रॉब्लमस है, इट्स ए हिंडरेंस इन द पाथ ऑफ फ्री इंक्वायरी। खुदा ने डाल दिया है हमारे अंदर, अभी चैलेंज के लिए इट्स नॉट अप फॉर चैलेंज ना। लॉक से नो, फ्री इंक्वायरी कोई रोकता है। सो इन हिज रिफ्यूटेशन ऑफ इनेट आइडियाज he relied on the assumption that true knowledge is found by the active employment of human faculties। कहते हैं लॉक कि अगर आप कहते हैं कि ये यूनिवर्सल है, ये इनेट आइडियाज ये है वो है फलाना है वटेवर, कहते हैं व्हाई कांट यू प्रेजेंट मी अ लिस्ट ऑफ इनेट आइडियाज। कहते हैं इतने सपोर्टर्स इनेट आइडियाज के गुजरे हैं, व्हाई आर यू नॉट एबल टू मेक ए कैटलॉग ऑफ इनेट आइडियाज सो दैट वी कुड एनालाइज देम। आप बस बोल देते हो इनेट आइडियाज है। जब हम आइडियाज की बात करते हैं आप कहते नहीं 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 ये एक्सपीरियंस से आया है, क्योंकि हम उसको रिफ्यूट कर लेते हैं। कहते हैं व्हाई कांट यू गिव अस ए सेटिस्फैक्ट्री क्राइटेरिया जिससे हम खुद अखज़ कर ले कि इनेट आइडिया में ये चीज़ होती है, फिर हम देखते हैं कि कोई इनेट आइडिया है क्या। सो इनडायरेक्टली ही इज इंसिनुएटिंग व्हाट, कि इनेट आइडियाज आर नॉट पॉसिबल। येट ही सेज कि इसके बावजूद यू रेफर टू द यूनिवर्सैलिटी एज द मार्क ऑफ इनेटनेस। तो लॉक कहते हैं कि देखो दो बात, पहली बात साबित नहीं कर सकते, दूसरी बात अगर मैं एक्सेप्ट भी करूं यूनिवर्सैलिटी, यूनिवर्सैलिटी से साबित नहीं होता कुछ।
यूनिवर्सैलिटी से इनेटनेस साबित नहीं होती, लेकिन तब भी अगर मैं यूनिवर्सलनेस भी एक्सेप्ट कर लूँ 2 मिनट के लिए, येट आई कैन एक्सप्लेन इट इन सम अदर वे अदर देन इनेटनेस। कि ओके, मान लिया मैंने 2 मिनट के लिए कि सब यूनिवर्सल आइडियाज़ हैं, सबके अंदर हैं। तब भी मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इनेट आइडियाज़। लॉक कहते हैं कि अगर इनेट आइडियाज़ का मतलब है कुछ प्रिंसिपल्स जो हमारे माइंड में बर्थ के टाइम से ही हैं, वो कहते हैं ऐसे कोई प्रिंसिपल्स हैं ही नहीं, बिकॉज़ वी कैन नॉट फाइंड देम। टेल अस अ प्रिंसिपल व्हिच वाज़ देयर सिंस द वेरी बर्थ। व्हाट आर द एग्जांपल्स व्हिच द रैशनलिस्ट्स गिव? रैशनलिस्ट्स एग्जांपल देते हैं जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें। वो कहते हैं कि ये हमारे अंदर पहले से होता है। लॉ कहते हैं नहीं, the law of contradiction and identity, you might suppose that they are innate, but they are really not innate. Why? Because they are not in insane people, they are not in idiots, they don't understand law of contradiction. Children, they don't understand all of these things, identity ka kaanoon and all. If they were innate, they would be in these categories as well. आपको याद होगा जब हमने रैशनलिज्म पढ़ा, वहाँ उन्होंने इसको एड्रेस किया था। उन्होंने क्या कहा था? They would say कि it was there in the mind of children, it is in the mind of insane as well. They do not know, they do not recognize it. देखिए, लॉग कहते हैं ये इनकंसिस्टेंट है। लॉग कहते हैं कि जब आपने एक्सप्लेन किया कि माइंड की एसेंस कॉन्शियसनेस है, एंड विच आई एग्री टू, लॉग कहते हैं सही कहा आपने। सो नथिंग इन माइंड कैन बी अनकॉन्शियस। लाइब्रेरी ने कैसे सॉल्व किया था? उन्होंने बोला था माइंड में अनकॉन्शियस स्टेट भी हो सकती है। इन्होंने अब क्या कहा? नहीं, डेकार्ट वाज राइट व्हेन ही सेड माइंड इज कॉन्शियसनेस। तो मसला अब है माइंड में अनकॉन्शियस कुछ हो ही नहीं सकता। देयरफॉर ही सेज, एंड आई कोट हिम, टू मी it seems a near contradiction to say that there are truths imprinted on the soul which it perceives or understands not. To say a notion is imprinted on the mind, and yet at the same time to say that the mind is ignorant of it and never yet took notice of it, is to make its impression nothing. End quote. अब ये जो इननेट प्रिंसिपल्स है कॉग्निशन का, इसको क्रिटिसाइज किया गया। अब आगे रुकें क्यों? इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं मॉरल और रिलीजियस आइडियाज पे भी, और यही हुआ हिस्ट्री में। लॉग ये नहीं करना चाहते थे। स्ट्रॉन्ग थीस्ट वांट्स टू डिफेंड रिलीजन, बर्कली भी यही करेंगे इसके बाद। बर्कले तो एक्चुअली पादरी ही थे खुद, लेकिन निकले थे जापान, पहुंच गए चीन। अब देखिए क्या करेंगे। लॉग कहते हैं यही हम कर सकते हैं। आप कहते हो मोरालिटी इंटरनल है, नहीं है। कहते देयर इज हार्डली वन सिंगल मॉरल प्रिंसिपल जिसको यूनिवर्सली एडमिट करती है इंसानियत, विच इज एडमिटेड बाय ऑल नेशंस। ऑन द अदर हैंड, देयर इज हार्डली एनी मॉरल प्रिंसिपल जिसका ऑपोजिट कहीं पे वर्चू ना माना गया हो। स्टीलिंग एंड मर्डर आपके लिए ये बड़ी बुरी बात है। स्पार्टन से पूछो, उनसे पूछो कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है। इवन among the civilized people, robberies, murders, rapes, these are sports of men set at liberty from punishment and censure. और ये जो so called morals हैं, they require proof. They are not self-evident innate principles. अब यहाँ पे भी क्यों रुके? अब खुदा को भी इस आल्टर पे चढ़ा दो। सारे फ्रेशनलिस्ट कह रहे थे द आइडिया ऑफ गॉड इज इंटरनल। सबका यही मानना है, मुसलमानों का भी यही मानना है। फितरत अल्लाह ताला की मोहर है दिल पे सबके। सो वी माइट थिंक आइडिया ऑफ गॉड इज innate, बट द आइडिया ऑफ गॉड इज इक्वली नॉट यूनिवर्सल। जो हमने अभी मॉरल्स वगैरह एनालाइज किए, गॉड भी वैसा ही है। द आइडिया इज जस्ट एज रिलेटिव, एज कन्फ्लिक्टिंग, एज वेरियस एज एनी अदर आइडिया ऑन दिस प्लेनेट। लॉग कहते हैं व्हाट टू स्पीक ऑफ सिंगल इंडिविजुअल्स हु आर एथियस्ट्स।
There are whole tribes without a god. There are nations without God. तो लॉ कंक्लूड करते हैं कि कोई आइडिया इनेट नहीं हो सकता, कोई आइडिया यूनिवर्सल है नहीं. बट अगेन, फ्रॉम द यूनिवर्सलिटी ऑफ एन आइडिया वी कैनॉट प्रूव इट्स इनेटनेस. ये याद रखे कि इन्होंने डिस्प्रूव तो किया है यूनिवर्सल होने को, लेकिन इनका आर्ग्यूमेंट ये नहीं है. ये कहते हैं अगर यूनिवर्सल हो भी, उसके बावजूद ये साबित नहीं होता उससे कि ये इनेट है. आइडियाज में बी यूनिवर्सल विदाउट बीइंग इनेट. लॉग कहते हैं जैसे द आइडिया ऑफ सन, सूरज, शम्स, ये सब के अंदर है. फायर बर्न्स, ये सब के अंदर है. आइडिया ऑफ हीट, लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि दीज आइडियाज आर इंटरनल टू अस. ये सब हमको बाहर से मिले हैं. लॉग कहते हैं इनेट आइडियाज के मानने वाले, if they maintain that innate ideas are only implicitly present in the mind, they become explicit in the course of time. Then this is true for all other ideas. तब innate idea अलग कैटेगरी बनाने की जरूरत क्या है? Innate idea cease to be unique. इनके खुद के वर्ड्स में, and I quote, I think nobody who reads my book can doubt that I spoke only of innate ideas and not of innate powers. अब ये लाइबनीज ने क्या किया था कि innate पावर बोला उन्होंने कि innate पावर तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा इवन इफ यू रिजेक्ट innate आइडियाज. लॉग यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ. मैं सिर्फ innate आइडियाज की बात कर रहा हूँ, innate पावर्स की बात नहीं कर रहा. इन दिस सेंस ऑल आइडियाज आर innate. फॉर इवन द आइडियाज ऑफ फायर, सन एंड हीट, उसको हम एक्वायर तभी कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर कैपेसिटी है एक innate, क्या हम उनको समझ सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं. तो लॉक इस डिलेमा में फंस गए. लॉक के वर्ड्स में, either the theory signifies that certain ideas and principles are explicitly present from the earliest period of consciousness, or it merely asserts the existence of a general capacity for knowledge. In the former case, it is false. कोई internal idea नहीं है. In the later case, it is totally unable to support the theory of certainty which has been reared upon it. इसके बाद ये जब इन्होंने तोड़ दिए ये बिल्डिंग, अब नया कुछ खड़ा करना है ना उसकी जगह, कहते हैं innate ideas are actually acquired. इसका मतलब क्या हुआ कि स्केप्टिक नहीं है. ये डिनायल ऑफ innate ideas का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे सारे ट्रुथ्स मैंने डिनाई कर दिए, साइंस भी नहीं, मॉरल्स भी नहीं, रिलीजन भी नहीं ना. कहते नहीं, आई ओनली वांट टू गिव देम ए रियल साउंड बेसिस इन नॉलेज. मैं उनको मिस्टिकल नहीं बनाना चाहता कि खुदा ने डाल दिया हमारे अंदर, ऐसा कुछ नहीं है. वी कैन रैशनली प्रूव इट, डाला जिसने भी हो. So Locke believes in the universal knowledge which he thinks can be explained by his philosophy of empiricism. ये जो हमारा नॉलेज है 2 + 2 = 4 या स्वीट इज नॉट बिटर, ये इनेट आइडियाज है. लॉक कहते हैं कि इट इज नॉट गेन्ड बाय हैविंग इनेट आइडियाज. ये हमारा एक्सपीरियंस से हमको पता चला कि स्वीट इज नॉट बिटर, 2 + 2 = 4. तो इसमें क्या किया इन्होंने वही बेकन के, फ्रांसिस बेकन के आइडियाज़ उनको आगे चलाया, जिसमें कायनात का जितना भी इल्म है इट कम्स टू अस फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ इट. सो 2 + 2 = 4. ये भी हमें एक एक्चुअल एक्सपीरियंस हमने देखा एक्सपीरियंस में अपने. ये कोई इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस से ऑफ द फर्नीचर ऑफ माइंड उससे कुछ नहीं हुआ. जो सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, कॉन्ट्रडिक्शन, ये सारी चीज़ें, या ये आइडिया ऑफ वन सिंगल इनफाइनाइट एंड परफेक्ट बीइंग, ये मीनिंगलेस है एक्सेप्ट टू द पीपल हु हैव एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स. उनके लिए मीनिंगलेस है.
तो ये फाइनली सारी चीज़ें एक्सपीरियंशियल ही हैं। तो इनेट आइडियाज़ को रिजेक्ट किया, बट द कंटेंट ऑफ दोज़ आइडियाज़ ही हैज़ एक्सेप्टेड, बट ही सेज़ द सोर्स इज़ आउटसाइड। आगे क्या कहते हैं कि हमने देखा इनेट आइडिया नहीं है और वो एक्वायर्ड है। तो इस वजह से द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्टडी फॉर जॉन लॉक वुड बी व्हाट? द वे वी एक्वायर देम। देखिए, लॉक बिलीव्ड इन रियल नॉलेज, उनका मानना था इस पे। तो अब वो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। रियल नॉलेज इट्स कंपोज्ड ऑफ प्रोपोजिशंस, और ये प्रोपोजिशंस ये किसके बने होते हैं? सिंपल आइडियाज के। तो इस वजह से हमें ओरिजिन ऑफ आइडियाज समझना होगा, यही बनेगा रियल मैटर ऑफ नॉलेज। कुछ चीज़ें हमको पता चलती है जब आप ओरिजिन ऑफ सिंपल आइडियाज को पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, कहाँ से आते हैं ये? कॉजेज, इनके क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज खुद में आइडियाज ना हो, येट दे में ओरिजिनेट आइडियाज, ये भी हो सकता है। इट मे ऑल्सो मीन दैट दोज अल्टीमेट लॉजिकल फॉर्मुलेशंस ऑन विच ऑल आइडियाज एंड नॉलेज डिपेंड, ये भी हो सकता है इंक्वायरी में, इसके बारे में भी हमको कुछ पता चले। लॉक इन तीन चीज़ों पे ध्यान देते हैं अपने स्टडी ऑफ आइडियाज में। ही डज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड येट फॉर अस ही प्रोड्यूसेस नथिंग बट कंफ्यूजन अगेन। फिर से यहाँ पे वही हुआ जो बाकी जगह हुआ बाकी फिलॉसफीज के साथ। नॉनदलेस, ये अपनी इंक्वायरी को बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं एज प्लेन हिस्टोरिकल मेथड, विच इट प्राइमरीली इज। लॉक का मेथड प्राइमरीली साइकोलॉजिकल है, क्योंकि ये उन प्रोसेसेस को एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे एक्सपीरियंस में एक्चुअली होती हैं। इसी को, ये साइकोलॉजिकल मेथड को, हिस्टोरिकल मेथड को वो खुद लॉजिकल समझते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट लॉजिकल। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब ये हिस्ट्री एज इन मिडिवल एंशिएंट ऐसी बात नहीं चल रही है। ओरिजिन ऑफ मतलब जो आपका आइडिया है उसकी हिस्ट्री, वो कहाँ से आया आपके अंदर, वो ये उसकी बात चल रही है। सो द हिस्ट्री और ओरिजिन मतलब वन एंड द सेम थिंग ऑफ आइडिया, ये हमारी इनसाइट्स को बढ़ाएगा into what ideas are actually, how they are built and everything. Yet it does not explain them what they are in themselves. They don't determine their truth. इसे कुछ नहीं हुआ, कोई नई बात नहीं बोली। जैसे कमल का फूल है, कीचड़ में पैदा होता है, बट फ्रॉम दिस इट डज नॉट फॉलो दैट इट इज itself muddy. One may arrive at a true proposition in a very incomplete and doubtful way, but the uncertain history of that proposition will not make it doubtful. तो आइडियाज़ के बारे में जानने से, जिसको आप यू से दैट वी वुड बी नोइंग अबाउट आइडियाज़ बाय नोइंग द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी गेट देम। द आर्गुमेंट हियर इज यू माइट नो द प्रोसेस, बट दैट डजंट मेक द नॉलेज ऑफ आइडिया इटसेल्फ पॉसिबल फॉर यू। उससे कुछ नहीं पता चला आपको आइडिया पर से, उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन, savage, fanatics, they may learn of God in very defective ways, कि इसकी फैमिली ने इसको मजबूर किया और इस वजह से या मुसलमान है या जो भी हिंदू है, क्रिश्चियन है, सोशल कंडीशनिंग की वजह से। और सम savage he found Islam और Christianity और in any other way he came across Gautam Buddha in the Lumbini forests, or he came across Jesus on a riding on a horse, he had a vision of Jesus. There are a lot of people, different ways. So there are defective ways as well. ये कोई rational way तो है नहीं। जैसे Saint Paul says that I had a vision of Jesus, where Jesus told me all these things. तो but from this it does not follow that the idea itself is defective. The idea can still be right. जैसे as a Muslim, someone says कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, और फिर मुझे सपने में
एक ऐसे बुजुर्ग आए, उन्होंने मुझे ये बोला, मैंने किया और इसलिए मैं मुस्लिम बना। फॉर ए मुस्लिम हिज बिलीफ इज करेक्ट। मुसलमान बोले कि हाँ तुम सही अकीदे पे आ गए, लेकिन ये जो मेथड है उसको आप माने या नहीं माने, वो तो मेथड पे तो क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि आपको आइडियाज़ के बारे में जब आप पढ़ेंगे, उसकी मेथडोलॉजी, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ से कुछ भी इल्म आए, वो आपको कुछ नहीं बता रहा आइडियाज़ के बारे में। और एल्स वी माइट हैव अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ नॉलेज, येट वी माइट फेल टू अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस। अपोजिट भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है कि पूरा इल्म है आपके पास, सब कुछ पता चला आपको, येट यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में मैं समझा क्या। फॉर एग्जाम्पल, वी मे गैदर अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट आइडियाज एंड मॉरल्स of different races etc at different times, yet we may not be able to understand what morality is in itself, जो कि एक्चुअल केस है भी। हमारे पास पूरा जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स है, yet we do not understand morality completely। तो ये कंफ्यूजन साइकोलॉजिकल और लॉजिकल मेथड में, ये वन ऑफ द कॉजेज है ऑफ द फेलियर ऑफ एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म और हेडोनिस्टिक स्कूल्स की क्रिटिसिज्म भी इसी पे सबसे ज़्यादा होती है, एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइम कॉजेज ऑफ देयर फेलियर इन फिलोसफी एंड एथिक्स इन पर्टिकुलर। यहाँ से आते हैं हम अब लॉ के फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल पे विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। आइडियाज़ के बारे में ही है हमारा डिस्कशन, ज़्यादा आइडियाज़ भी ही चलेगा। द फर्स्ट वन इज सिंपल आइडियाज़। लॉक किस ज़माने में है? जिस ज़माने में सब चीज़ों को इकट्ठा कर रहे थे। ही इज़ लिविंग इन द एज ऑफ कंपोजिशन थियरी। कंपोजिशन थियरी का मतलब क्या हुआ कि एवरीथिंग इज अ कॉम्प्लेक्स होल, दैट इज इट इज ओनली अ सम टोटल ऑफ सिंपल पार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको शायद सुपरफिशियली एक्सेप्ट करें, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। दिस सेज एंड इट वुड मेक, पहली ग्लिम्स पे इट वुड मेक सेंस टू यू, ओके यस इट मेक्स सेंस। जैसे 1 + 1 इज 2, 2 इज नथिंग बट 1 + 1, and you would be like, okay, yes, makes sense, 2 is nothing but 1 + 1. But there is another way of looking at that, 2 is something more than 1 + 1। ये उतना सेंस नहीं बनाता, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इट मेक्स सेंस। इसी वजह से आपने वो कहावत सुनी होगी, 1 और 1 11। टू पीपल आर एबल टू डू मोर देन टू सेपरेट पीपल वुड डू सेपरेटली। सो इसको इकोनॉमिक्स में जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कहने का मतलब अगर आपके पास एक मशीन है और आप 100 चीज़ें बना रहे हैं, अगर आपके पास 2 होंगी तो आप 200 नहीं, 210 बना पाओगे। तो हमारे लिव्ड एक्सपीरियंस में वी माइट डिफर ऑन दैट, बट फॉर नाउ लेट्स से लॉ किस एरा में जी रहे हैं जहाँ पे ये माना जा रहा है। जैसे मैंने अपने एक राइट अप में, इफ यू हैव रेड इट, मैंने उसमें आर्ग्यू किया है कि सोसाइटी इज नॉट जस्ट एग्रीगेशन ऑफ पीपल। जो माना जाता है इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में, सोसाइटी को क्या माना जाएगा? ये फर्द, सम टोटल ऑफ ऑल फर्द इज इक्वल टू वन सोसाइटी। बट I said society is not just the aggregation of people. It is more than that. To the aggregation of people, you add this idea of, say, for example, family, of morals, of collectivity or individualism, all of these things, of economics, and then you form what you call a society. वही बात यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लॉक सॉल्व है, ये इसी एरा के प्रोडक्ट है कि कॉम्प्लेक्स होल इज only a sum total of simple parts. But this ignores the fact that the whole itself may have a characteristic by virtue of it being the whole, जो मैं आपको कह रहा हूँ। ये इस चीज को मिस करता है कि होल होना, that in itself might have उसके खुद के अंदर कोई होल होने से कोई नई प्रॉपर्टी भी आ सकती है। एंड अगेन, a part is
greatly changed by the whole of which it becomes a part. ये भी हकीकत है कि किसी चीज का हिस्सा बन के the part itself gets changed. Nonetheless, लॉक का ये मानना था कि वो नॉलेज के साथ भी ये कर सकते हैं कि इफ वी डिवाइड नॉलेज एंड चेक इट्स इंडिविजुअल जो इसके कण है पार्ट्स है वी माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड नॉलेज इटसेल्फ. But where is he going wrong? If the other understanding is right, that knowledge is not sum of simple ideas. It is not merely a summation of simple ideas. Simple ideas together make sum of simple ideas plus something more. तो लेकिन लॉग क्या कह रहे हैं कि knowledge is sum total of individual elements of knowledge. So if we understand individual elements of knowledge, we would be able to understand knowledge. So these individual elements of knowledge are nothing but simple ideas. So this is the fundamental. इससे नीचे knowledge नहीं हो सकता. तो क्या है अब simple idea? Being in itself uncompounded, contains in it nothing but one uniform appearance, one conception in the mind, and it is not further distinguishable into डिफरेंट आइडियाज. फर्दर आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते. ये एक अनएनालाइजेबल सिंपल डेटम है इल्म का फंडामेंटल एक कण. लेकिन लॉग फर्दर इसको डिस्क्राइब नहीं करते हैं कि अनएनालाइजेबल का मतलब क्या हुआ. एग्जाम्पल ये देते हैं कि एक्सटेंशन, ड्यूरेशन, दीज आर सिंपल आइडियाज. हमको कुछ और चीज़ें भी पता चलती है. अनएनालाइजेबल ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसको फर्दर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते. But we get to understand a few things about simple ideas, and he will talk about complex ideas as well. I will try कि देखते हैं कितना हो सकता है, but जितना होगा हम simple idea को तो अभी मुकम्मल कर लेंगे. देखिए हमको क्या चीज़ें पता चलती है simple ideas के बारे में कि mind is passive in the reception of simple ideas. Mind का कोई रोल नहीं है इसमें. अगर mind उसमें मुदाखलत करेगा, if the mind interferes, then what you get is complex ideas. So complex ideas are a product of mind plus sensation, but simple ideas they are purely external. Mind का कोई रोल नहीं है. Simple ideas इसका कहने का मतलब हुआ simple ideas are directly known through actual experience. For example, you just know, अगर आप कोई भी चीज को देखोगे, you just come to know about its color. You just cannot avoid it. आपको पता चल गया इसका कलर. Simple idea. Its extensity through sensation. You come to know about it. और लॉग का मानना था ये जो सिंपल आइडियाज हैं ये एक एक करके माइंड में जाते हैं. ये होते एक साथ हैं, एक ही चीज के हैं. सो दिस थिंग इज येलो इन कलर एंड इज गोल्ड, बट यू गेट द आइडिया अलग अलग of coldness separately of its yellow color. For instance, we might get the ideas of color, smell, taste, and touch when we eat something. Yet we get all of these ideas separately, one by one. तो ये करके इन्होंने अपना पॉजिटिव थ्योरी ऑफ नॉलेज बता दिया. इससे पहले इन्होंने नेगेटिव थ्योरी, डिस्ट्रॉय, गलत क्या क्या है. अब ये खड़ी कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग. इसमें माइंड इज पैसिव, तो ऑल आइडियाज ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सपीरियंस. तो इसका मतलब ये भी हुआ ना तब कि एट बर्थ, इमीडिएटली एट बर्थ आपने कुछ एक्सपीरियंस किया था उससे पहले? नथिंग. दैट मीन्स यू आर बॉर्न विद अ क्लीन स्लेट, टेबुला रासा. और जितना भी इल्म है आपके पास, दैट्स एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस ये भी दो तरीके का है, सेंसेशन और रिफ्लेक्शन. तो एक्सपीरियंस दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो सेंसेशन और दूसरा रिफ्लेक्शन. सेंसेशन तो आप इजीली समझ गए ही होंगे, जिससे माइंड को इल्म हासिल हुआ किस चीज़ का? एक्सटर्नल वर्ल्ड का. ये फ़ोन, ये किताब, ये पानी की बॉटल, ये सारा, ये यू आर लिसनिंग टू माई वॉइस, दिस इज सेंसेशन, एक्सटर्नल वर्ल्ड. रिफ्लेक्शन से
Reflection is that perception which through which mind receives information about the operations of its own process. खुद के बारे में जो इल्म हासिल करता है वो भी एक्सपीरियंशियल है, बट एक्सपीरियंस ऑफ ए डिफरेंट काइंड. व्हाट काइंड? रिफ्लेक्शन काइंड. थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं. और पहले सेंसेशन, इस पे वी वुड नॉट स्पेंड मच टाइम. रिफ्लेक्शन को फिर थोड़ा सा समझेंगे. सेंसेशन अराइजेस बाय बॉडीली अफेक्शन. When your body gets affected, your eyes get affected by the sight, your ears get affected by some sound. So when the body gets affected, there is a bodily affection, and it is representative of real things. So this sight which I have through my eyes in my mind, this is of what? Of what is actually outside me. तो इसका कॉज क्या हुआ? एक्सटर्नल मटेरियल थिंग्स. ये जो बॉडीली अफेक्शन है ये ब्रेन तक पहुंचाता है, जो भी जैसे भी, अब वो फिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे पहुंचता है उसके पास. एंड दिस गिव्स राइज टू व्हाट यू कॉल सेंसेशन. लॉक मेंशन करते हैं सारे डिस्टिंक्शंस, एवरीथिंग ही टेल्स अस, बट हाउ बॉडीली मोशन गिव्स राइज टू कॉन्शियसनेस, ये कहते हैं ये अनइंटेलिजिबल है. अनडिनाइबल है लेकिन अनइंटेलिजिबल है कि हाउ डज ऑल ऑफ दिस थिंग लीड टू कॉन्शियसनेस, ये नहीं समझ सकते. Again, as a realist, he maintained that a sensation always represents or it stands for something in the real world. But then, consciousness in itself, undeniable but unintelligible. जैसे सेंसेशन हमको बाहर की दुनिया के बारे में बताता है, रिफ्लेक्शन हमको अंदर की दुनिया के बारे में बताता है. हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं जैसे हिंदू फलसफे में इसको कैरेक्टराइज किया गया है एज एन इंटरनल सेंस ऑर्गन. जॉन लॉक भी यही कर रहे हैं, वो इसको इंटरनल सेंस कहते हैं जिससे माइंड को अपने बारे में पता चलता है. ये सेंसेशन से डिफरेंट कैसे है तब? इट डिफर्स फ्रॉम सेंसेशन नॉट ओनली इन हैविंग अ डिस्टिंक्ट स्फीयर ऑफ इट्स ओन, बट देयर आर अदर डिस्टिंक्शंस एज वेल. एक तो स्फीयर ऑफ नॉलेज, बाकी सेंसेस का एक्सटर्नल है, इसका इंटरनल है. इसके अलावा इसके कुछ और भी डिफरेंसेस हैं. ए सेंसेशन परफॉर्म्स ए रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन. सेंसेशन एक्चुअल थिंग नहीं है. द सेंस ऑफ अ फोन इज नॉट द फोन इटसेल्फ. फोन इज आउटसाइड. So it's just a symbol of external things. However, reflection में क्या होता है? It's not a representation of an idea. It is the idea itself. दूसरा, noticing or attention is necessary in reception of all simple ideas. आंखें बंद की नहीं दिखेगा. You don't want to hear, you can move away. तो उस सब में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. लेकिन रिफ्लेक्शन में ऑपोजिट नहीं है कि इसमें नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी है हमेशा होगा. इसमें इवन फार ग्रेटर अटेंशन इज नीडेड. तो यहाँ पे भी कैंट के आपको थोड़े से वो दिख रहे हैं रूट्स. नो, कैंट ने क्या कहा था? नॉलेज बिगिंस विद एक्सपीरियंस बट इट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इट. एक्सपीरियंस में सिंपली अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फुल एक्सरसाइज ऑफ मेंटल एक्टिविटी. लॉक भी he seems to point to this theory of active mind. Yet he suffered from the assumption of his own time in regarding knowledge as a pure receptive and representation. Mind is passive in it. Any recognition of constructiveness in knowledge, according to this view, will reduce knowledge to invention. कहने का मतलब, अगर आप माइंड को इसमें कुछ रोल दे दें कि माइंड इसके साथ कुछ खुराफात करता है, तो इस लॉकियन पर्सपेक्टिव से आपने क्या किया? नॉलेज को इन्वेंट किया. यू इन्वेंटेड समथिंग विच वाजंट देयर. तो जो एक कॉबी थियरी है नॉलेज की, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज रिजेक्शन ऑफ द थियरी ऑफ एक्टिव माइंड. वाइसी वर्सा हो गया अब. दस ही लाइकन्ड माइंड इज जस्ट ए मिरर विच रिफ्लेक्ट्स आउटसाइड विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट. खुद से कुछ नहीं करता. लेकिन ये जो है ना,
this Baconian nature of mind. This does determine the nature of images reflected by it. Therefore, like all pre-Kant philosophers, he held the passivity of mind to save knowledge from arbitrariness and fictitious nature. सिंपल आइडियाज ये चार तरीके के होते हैं। एक तो जो सिंपल सेंस से आपको मिलते हैं, जैसे कलर है, टेस्ट है, साउंड है। एक वो होते हैं जो मोर देन वन सेंस गिव यू, दैट इज शेप, साइज, स्पेस, टाइम, मोशन। फिर होते हैं आइडियाज विच ओरिजिनेट इन रिफ्लेक्शन, माइंड एग्जामिन्स इट्स ओन एक्शन, जिसके बाद it discovers the presence of some memory and all remembering. So these would be ideas originating in reflection. Then there are ideas which originate in sensation and reflection together. So, pleasure, pain, etc. जितना भी हमारा इल्म है ये सिंपल नॉलेज आइडियाज पे ही बेस्ड है लॉग के हिसाब से। जैसे एंटायर लिटरेचर इज बेस्ड ऑन व्हाट, सिंपल लेटर्स। ये लेटर्स हैं, इल्म के लेटर्स क्या है, आइडियाज़ है। दे आर, उनको अब कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, माइंड एक्ट्स ऑन दैम और उनको यूनाइट करके कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ बताएगा। एंड दीज कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू फाइंड आउट टुमारो।